Good morning, students. How are you? Hope you are doing very well and welcome to the online classes. We believe that you have going through the videos and also you are doing your homework on time. As I already told you that if you are not sending your homework on time, then uh, we will put your absenteeism. And please send your homework on time. As you all know that you can send your homework and in the group, and please do write your name on the paper or on the notebook also. So today we are going to start a new chapter. As you all know that we have already completed the second chapter and I have already given you the work and most of you have already submitted the work also. There are many those who have not submitted. Please submit your work because if you are not submit, we will put absent. Okay, that is for clear. So please submit your work properly to the group. Now we are going to start a new chapter. As you all see on the board, the chapter number 4. Now you might be thinking why chapter 3 is not here. Okay, so chapter 3 is not for chapter 3 is omitted for now. Okay, and we will start with chapter 4. The In the kingdom of fools. In the kingdom of fools, now it's a story which is talking about a kingdom which is ruled by fools, right? Or idiots, you can say that. Now it is an Kannada story which was then translated in English, and then A.K. Ramanujan was the person who wrote this story. Now this is an Indian story and this is a Kannada story. So there are some words which are going to be related to Kannada, which I will translate, of course. So this story is very humorous and kind of, you can say it's a kind of satire where you have to tell that if a person is fool or an idiot, you cannot make sense with him. ठीक है, आप किस अगर कोई व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता तो आप उसको समझा नहीं सकते, कहने का मतलब ये है. ठीक है, और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है. चैप्टर नंबर 3 हम नहीं कर रहे हैं अभी. अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम बाद में पढ़ेंगे, मगर चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं. और चैप्टर नंबर 4 का नाम इन द किंगडम ऑफ फूल्स. ये सबसे पहले कन्नड़ा लैंग्वेज, जो कि आप जानते हैं कर्नाटका स्टेट कन्नड़ा लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में लिखा गया था. उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. नाउ द किंगडम ऑफ फूल्स, आपने शायद पहले भी ये स्टोरी दूसरी क्लास में यू माइट हैव हर्ड और यू माइट हैव स्टडीड दिस स्टोरी बिफोर आल्सो. तो शायद आपने पहले भी ये पढ़ा होगा. तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है ये. नाउ ये स्टोरी जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब एक किंगडम है, एक राज्य है जहां पे सब लोग क्या है, फूल्स है, बेवकूफ है. ठीक है, वैसी एक स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट विद द, प्लीज ओपन योर बुक्स and we will start from the heading part. In the kingdom of fools, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? क्या कहता है, ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, वो जो बेवकूफ होते हैं, वो सबसे ज्यादा डेंजरस लोग होते हैं. सबसे खतरनाक लोग कौन है? जो बेवकूफ है या फूल्स है, वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही समझदार लोग या कुछ ही वाइस लोग ही उनको क्या कर पाएंगे, उनको समझ पाते हैं या उनको कंट्रोल में कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैनॉट कंट्रोल और यू कैनॉट मैनेज फूल्स. तो इस स्टोरी में फूल कौन है और उनके साथ क्या होता है, वो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day, and the two strangers were amazed by what they saw around them.
and wandered around town till evening, when suddenly the whole town awake up and went about its nightly business. तो क्या होता है वहां पे? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। इस किंगडम में, किंगडम ऑफ फूल्स मतलब राज्य का नाम ही किंगडम ऑफ फूल्स है, राइट? तो उस किंगडम के अंदर बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, यानी जो राजा था वो और जो उसके मिनिस्टर थे वो, दोनों ही क्या थे? इडियट्स थे, दोनों ही बेवकूफ थे, दोनों ही पूरा टीम ही बेवकूफ था, राइट? दे डिडंट वांट टू रन दिस थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। वो दूसरे राज्यों की तरह, दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में बदल दिया। व्हाट डज इट मीन? नाउ इट मीन्स they ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up। क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? राजा ने क्या ऑर्डर निकाल रखा था उस किंगडम के अंदर कि रात को सब काम करेंगे, मतलब सब लोग रात में ही खेती का काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, रात को करेंगे, और जैसे ही सूरज उगता है सब लोग सो जाएंगे। यानी उन्होंने उल्टा कर दिया है ना, तो वो रात को काम करते थे और दिन में सो जाया करते थे। So this is how it is going to work. Now the people and okay, only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed will be punished with death। और अगर किसी ने उसको क्या किया, अगर डिसोबे किया, अगर किसी ने उसको नहीं माना, तो पनिशमेंट क्या है? डेथ, सीधा सीधा मार दिया जाएगा। The people did as they were told for fear of death। Now the king and the minister were delighted at the success of their project। अब जो लोग थे, वहां की जो प्रजा थी, वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। ठीक है, प्रजा बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने जैसे उन्होंने बोला, जैसे राजा ने बोला वैसा किया। नाउ द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर थे वहां के, जो मंत्री लोग थे, वो बहुत खुश थे। राजा और मंत्री बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उनका वो जो प्लान था वो सक्सेस हो गया। फिर क्या हुआ? One day a guru and his disciple arrived in the city। एक दिन क्या होता है, वहां पे एक गुरु और उसका जो चेला है वो वहां पे पहुंचते हैं, उस सिटी के अंदर पहुंचते हैं। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day। और जैसे ये गुरु और जो चेला है वो वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सिटी है, मगर कोई नहीं है उस सिटी में, है ना? सिटी में सब सो रहे हैं, यहाँ तक कि जो चूहे हैं, यहाँ तक कि जो जानवर है ना, उनको भी ऐसा सिखाया गया है कि दिन में सो जाओ और रात को ही उठना है, मतलब कोई भी जगह हुआ नहीं है दिन में। फिर क्या होता है वहां पे? The two strangers were amazed by that what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about to nightly business। और ये जो स्ट्रेंजर्स थे, ये लोग नए आए थे वहां पे, कौन? गुरु और चेले। तो ये जो नए आए थे वो लोग क्या है, पूरे सिटी में घूमते रहे और ये देख के वो चौंक गए कि कोई भी उठावा नहीं है दिन में। ठीक है, शाम तक वो घूमते रहे और शाम होते होते वहां पे चहल पहल वापस से चालू हो गई, यानी जो लोग बाग थे वो उठ के अपने काम पे आने लगे शाम को। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है? The two men were hungry. Now that their shops were open, they went to buy some groceries। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single duddu। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a duddu। The guru and his disciple were delighted। They had never heard of anything like this। They could buy all food they wanted for a rupee। अब उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। They were hungry। क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक घूम ही रहे थे, उनको नहीं पता था कि ऐसा एक जगह है करके, तो वो घूम रहे थे, वो बहुत ज्यादा भूखे थे। तो जैसे ही शाम को जब दुकानें खुलने लगी तो वो वहां पहुंचे, मगर जब वो वहां पहुंचे तो दे वर अस्टोनिश्ड मतलब दे वर सरप्राइज्ड, वो चौंक गए ये सुन के कि वो कुछ भी खरीदे, खाने का, ग्रोसरीज का या खाने का, वो कुछ भी खरीदे, सबकी कीमत क्या थी? 1 दुड्डू। ना दुड्डू मतलब क्या होता है? 1 रुपी। ठीक है, कन्नड़ा में दुड्डू मतलब 1 रुपी होता है। ठीक है, तो वो कुछ भी खरीदे, भले वो क्या है, मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना। ठीक है, या तो वो चावल खरीदे, ठीक है, या फिर वो एक पूरा बंच ऑफ बनाना खरीदे, वो सब 1 रुपए का था। सर चीज के 1 रुपए प्राइस। तो
The guru and the disciple were delighted. They had never heard of anything like this. अब गुरु और जो चेला था, जो डिसाइपल था, वो बहुत खुश हो गए. उन्होंने कभी ऐसे सुना ही नहीं था 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा है. They could buy all the food they wanted of a rupee. वो कुछ भी खरीद सकते थे, वो खाने की कोई सी भी चीज खरीद सकते थे सिर्फ 1 रुपए में. थर्ड पैराग्राफ क्या कहते हैं? When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. There's no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap there, everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The guru said, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब जैसे ही उन्होंने खाना खरीदा, खाना खा लिया, तब गुरु को ये समझ में आ गया कि ये जो जगह है वो क्या है, किंगडम ऑफ फूल्स है ना, सारे ही बेवकूफ है यहाँ पे, या सारे ही इडियट्स है यहाँ पर. तो गुरु ने चेले से कहा, डिसाइपल से कहा, लेट्स मूव आउट फ्रॉम हियर. ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, बिकॉज दिस इज किंगडम ऑफ फूल्स एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. मतलब कि ये तो क्या है, बेवकूफों का देश है, हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे आगे. ठीक है, बट डिसाइपल जो चेला था, ही इग्नोर्ड, मतलब उसने कहा मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से. क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ खाना चाहिए था, जो कि सस्ते में मिल रहा था उसको. अब उसको सस्ता खाना चाहिए था, वो बोलता है यहाँ पे खाना बहुत सस्ता है, मैं तो यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा. तो गुरु उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज किंगडम ऑफ फूल्स, वी डोंट नो कि आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, हमें नहीं पता वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं. बट द डिसाइपल वॉन्ट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वांटेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. द डिसाइपल स्टेड ऑन, ate his full every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब क्या हुआ? गुरु ने कहा कि हम चलते हैं, मगर जो डिसाइपल था वो जाना ही नहीं चाहता था. वो कह रहा था नहीं, मुझे तो यहाँ पे फ्री का बहुत सस्ता खाना मिलता है, मुझे तो यहीं रुकना है. लास्ट में गुरु ने कहा, ओके जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो, मैं तो जा रहा हूँ. ठीक है, वैसे वहां से चला जाता है और डिसाइपल वहीं पर ही उसी किंगडम में रुक जाता है. और वो उसने खूब खाया, क्योंकि उसके पास जो पैसे थे कम पैसों में मिलता था, तो उसने खूब खाया और खूब घी, खूब चावल, खूब रोटी या बीफ, सब कुछ खाया उसने, और वो बहुत ज्यादा फैट हो गया, खूब फूल गया. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. Now his brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. क्या कहता है? एक दिन क्या हुआ? On a bright day, एक दिन बहुत अच्छा दिन था. उस दिन क्या हुआ? A thief broke into a rich merchant's house. एक जो चोर था वो एक व्यापारी, एक बहुत पैसे वाले व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए गया. कब घुसा? दिन में. क्यों? क्योंकि दिन में सब सो रहे हैं, है ना. तो चोर कब काम कर रहे हैं? हम दिन में कर रहे हैं. तो दिन चोर क्या है? एक व्यापारी के घर में घुसता है, मर्चेंट के घर में घुसता है, टू स्टील और टू चुराने के लिए घुस रहा है. नाउ ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. उसने क्या किया? उस घर में एक छोटा सा हॉल बनाया दीवार के अंदर, और उसके अंदर से निकलने लगा. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. और जैसे वो चोरी कर रहा था, तो वो जो दीवार थी जिसमें उसने छेद किया था, वो दीवार गिर गई उसके ही सिर पर, चोर के सिर पर, और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. फिर क्या हुआ? His brother ran to the king and complained. कौन? चोर का जो भाई है वो किंग के पास जाता है और उसने कंप्लेन किया. क्या कंप्लेन किया? Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसने चोर से क्या कंप्लेन, उसने राजा से क्या कंप्लेन किया कि जब मेरा भाई अपना काम कर रहा था, काम क्या था? चोरी, है ना. He was stealing. तो वो कहता है कि जब मेरा भाई काम कर रहा था
तो ये जो है पुरानी दीवार उस पे गिर गई और वो उसकी डेथ हो गई है। अब क्या हुआ? दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, नाउ ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। और उसने क्या कहा कि ये जो मर्चेंट है, ये जो व्यापारी है, ये बिजनेसमैन है, ही हैज टू बी ब्लेम्ड, उसको ब्लेम करना है। क्यों? बिकॉज ही हैज बिल्ड अ नॉर्मल वॉल, उसको एक अच्छा वॉल बनाना चाहिए था, वहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं था, उसको अच्छा वॉल बनाना चाहिए था। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता तो वो दीवार नहीं गिरती और मेरा भाई नहीं मरता। तो क्या करना है? He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. इसलिए क्या करना है? आप इस मर्चेंट को सजा दो और हमें हमारी फैमिली को कॉम्पनसेट करो। तो इस इंसिडेंट से हमें पता चल रहा है कि उनका जो किंगडम था, उनका जो राज्य था, कितने बेवकूफों से भरा था। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे अप टू द थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। वी विल कंटिन्यू टुमारो, वी विल सी व्हाट हैपेंड। हम देखेंगे अगले वीडियो में कि हुआ क्या है। ठीक है, क्या हुआ उसके साथ, उस मर्चेंट के साथ क्या हुआ या किसके साथ क्या हुआ, हम आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो टिल नाउ प्लीज गो थ्रू दी चैप्टर, आगे का भी आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग chapter, so you can go through it, and also जिसने भी homework नहीं send किए हैं, please send your homework. ठीक है, till then stay home, stay safe, read and study the chapters. Okay, till then bye bye, thank you.